سندھ حکومت کی بھی ایران پر حملوں کی مذمت۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سپریم کمانڈر آیت اللہ سعید علی خامنائی سمیت دیگر شہادتیں افسوسناک اور تکلیف دہ ہیں۔ عوام صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک ہیں۔ سپریم کمانڈر آیت اللہ سید علی خامنائی اور دیگر شہادتیں انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہیں۔ ہم سوگواران کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جذبات سب کے ہیں اور ہم سب کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ ہم خود بھی بہت دکھی ہیں۔ پاکستان کے بھائی بہنوں کو، مذہبی جماعتوں کو اور عوام سے یہ اپیل ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایسے میں ہم اگر اپنے ملک کے اندر احتجاج کو شدت میں بدلیں یا قانون کو ہاتھ میں لیں تو یہ دشمن کے منصوبوں پر فائدہ ہوگا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ پاکستانی حکومت نے ہر سطح پر ایران کی سپورٹ کی، اقوام متحدہ میں بھی اور دیگر سفارتی محاذوں پر بھی، تاکہ یہ جنگ نہ ہو سکے، اور پھر ان حملوں کی بھی سختی سے مذمت کی ہے۔ پاکستان میں بھی ہمیں صبر اور تدبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس وقت قومی اتحاد اور استحکام ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے، اور ہم سب نے مل کر اپنے لیے سوچنا ہے اور ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ شہر کی موجودہ صورتحال پر میئر کراچی کی ہدایت پر ایمرجنسی کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے بلدیہ عثمیٰ کے ہیڈ آفس میں قائم ایمرجنسی سیل 24 گھنٹے کام کرے گا۔ ترجمان بلدیہ عثمیٰ کراچی کا کہنا ہے کہ سیل بنانے کا مقصد ایمرجنسی رسپانس کو مؤثر بنانا اور کسی بھی صورتحال کو بروقت مانیٹر کرنا ہے۔ بلدیہ عثمیٰ کے تمام محکمہ جاتی سربراہان بھی ہنگامی صورتحال میں مدد کریں گے۔ بلدیہ عثمیٰ کے زیر انتظام تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال یا ایمرجنسی کی صورت میں افسران کے فون اور موبائل نمبرز جاری کر دیے گئے۔ چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت بہادر آباد مرکز پر اجلاس ہوا ہے، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی کمیٹی نے ایران پر بلا اشتعال حملے اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سمیت بے گناہ شہریوں کی شہادت کی مذمت کی۔ MQM پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اپنے اعلامیے میں کہنا تھا کہ پورے خطے کا بیک وقت جنگ کی لپیٹ میں آ جانا انتہائی تشویشناک معاملہ ہے۔ پوری دنیا کے حکمرانوں کو بردباری اور ذمہ داری کا مظاہرہ اور معاملے کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے حکمران بھی خطے کی بدلتی صورتحال اور پاکستانیوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدام اٹھائیں۔ پاکستانی عوام کا اپنے مسلمان بھائیوں کی شہادت پر پرامن احتجاج فطری رد عمل ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات 5 روپے سے لے کر 8 روپے تک مہنگی کر دی گئیں، جس کے بعد عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ بڑھ گیا۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔ رمضان المبارک میں عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ ملک بھر میں پیٹرول مصنوعات مہنگی کر دی گئیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول 258 روپے 17 پیسے سے بڑھ کر 266 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ شہریوں کو کہنا ہے کہ مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پہلے ہی زندگی حجیرن کر رکھی ہے۔ ایسے میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول سستا کیا جائے اور حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، جو ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہیں یا صدر صاحب ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، غریب بندے، مہنگائی اتنی ہے، تنخواہیں ادھر کی ادھر کھڑی ہیں لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ قیمت ہونی چاہیے 150، زیادہ سے زیادہ 200 جو بندہ افورڈ کر سکے۔ آج کل دیکھ رہے ہو کیا تنخواہیں کتنے ہیں کمپنیوں میں۔ غریب آدمی ہیں، گھر کا راشن یہ وہ، رمضان کا مہینے تھوڑا کوپریٹ کرنا چاہیے حکومت کو۔ ہمارے ساتھ غریب لوگ ہیں، غریب عوام ہیں۔ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل 275 روپے 70 پیسے سے بڑھ کر 280 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ وسیم افتخار، City 21۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول 8 روپے لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ آن لائن بائک رائڈرز کی مشکلات بڑھ گئیں۔ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل کا پہیہ جلے گا تو گھر کا چولہا جلے گا۔ اگر پیٹرول اسی طرح مہنگا ہوتا رہا تو ہمارے لیے موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ऑनलाइन बाइक राइडर्स की कमर तोड़ दी। 8 रुपए लीटर इजाफे ने सड़कों पर रोजगार कमाने वाले ऑनलाइन बाइक राइडर्स की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बाइक राइडर्स कहते हैं कि पहले ही आमदनी महदूद थी, अब पेट्रोल महंगा होने से यौमिया कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन की मद में खर्च हो जाएगा। राइडर्स के मुताबिक पेट्रोल 8 रुपए महंगा जरूर हुआ है, लेकिन इसके असरात कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रोजाना कई लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ता है। महंगाई के इस दौर में बच्चों के अखराजात, घरेलू राशन और दीगर जरूरियात पूरी करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। पेट्रोल सस्ता होता था, हमारा 2000-2500 में कमाते थे, अभी महंगा हो गया, अभी 1000 रुपये लगता है, उसमें वो भी हमारा नहीं होता है। हमारे के लिए 200 होना चाहिए, अच्छी बात, गरीब आदमी है तो कमा के ले जाते हैं, ये तो बच्चों के लिए लेके जाते हैं। पेट्रोल लाते हैं तो हमारा काम तो पूरा है, हमारे को तो कुछ भी नहीं बच रहा इसमें से। ऑनलाइन बाइक राइडर्स का कहना है कि अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी ना की गई तो उनके लिए रोजगार जारी रखना भी एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर में एलपीजी ओगरा की मुकर्ररा निर्ख से 70 रुपये महंगी, फी किलो 300 रुपये में फरोख्त। गैस बहरान के बाद शहरी एलपीजी सिलेंडर मजबूरी में खरीदने लगे। हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रमजान में भी एलपीजी की कीमतों को ब्रेक ना लग सका। शहर भर में एलपीजी सरकारी निर्खों के बरखिलाफ फरोख्त। एलपीजी दुकानदारों ने ओगरा के मुकर्रर करदा निर्ख नजरअंदाज करते हुए गैस महंगी फरोख्त करना शुरू कर दी। मार्केट में एलपीजी सरकारी कीमत से तकरीबन 70 रुपए फी किलो जायद वसूल की जा रही है और कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुँच गई है। शहरियों का कहना है कि गैस की बंदिश और कम प्रेशर के बाइस उन्हें मजबूरन महंगी एलपीजी खरीदना पड़ रही है, जिससे घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। ये तो बहुत मुश्किलात है, ये हुकूमत को देखना चाहिए, इस पे ऊपर हल करना चाहिए, क्योंकि लोग बेरोजगार है पहले से और यहाँ पे जो है ना एलपीजी खरीद करके जो है जिला अपना जला रहे हैं। हुकूमत से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी करके ये गैस का मसला हल करें। गैस है ही नहीं ना, रमज़ान के अलावा भी नहीं है। जो तो आप रमज़ान की बात कर रहे हो, रमज़ान के अलावा आगे चेक करो कहाँ है गैस। अवाम ने मुतालबा किया कि हुकूमत और मुतालिका इदारे महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें और ओगरा के निर्खों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में भी सब्जियां सरकारी निर्खों पर फरोख्त न हो सकें। कमिश्नर कराची के सरकारी निर्खनामे बराए नाम रह गए। सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गया। आलू सरकारी कीमत 23 के बजाय 40 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। काविश की रिपोर्ट देखिए। 500 रुपए का बना लो, 500 रुपए का बना लो। रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में भी शहर भर में सब्जियां सरकारी नरखनामे के मुताबिक फरोख्त ना हो सकी। आलू सरकारी कीमत 23 रुपए फी किलो के बजाय 40 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 23 रुपए के बजाय 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है। इसी तरह मटर सरकारी नर्ख 58 रुपए के मुकाबले में 100 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है, जबकि टमाटर 23 रुपए के बजाय 40 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा सरकारी नरखनामा सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गया है। फिर इनकी मर्जी है भाई, रेट तो रमज़ान में हर रमज़ान में चढ़ते रहते हैं, हाँ कम तो रहते ही नहीं है। सब्जी फरोश बोले, सब्जी की कीमतें रोजाना डिमांड और सप्लाई के बायस उतार चढ़ाव का शिकार रहती है। 30 के हिसाब से आ रहा है, 40 का बिक रहा है, 50 का बिक रहा है। फिर आलू में फर्क है, लंबा गोल हर किस्म के हिसाब किताब होते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि रमजान में आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची ने एक्शन। बलियोस्मा महकमा इंजीनियरिंग ने 39 तरक्याती स्कीमों के टेंडर जारी कर दिए। टेंडर से मुतालिक दरखास्तें 20 मार्च तक वसूल की जाएंगी। शहर में 39 तरक्याती स्कीमों पर 30 जून तक काम मुकम्मल करने का टारगेट सेट कर लिया गया। मंगोपीर, मलीर, क्लिफ्टन, नौरंगी, गिजरी, न्यू कराची, कुरंगी, दीगर इलाकों की सड़कों और सीवरेज निज़ाम की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि गुलशन इकबाल, शाह फैसल, शहीद मिल्लत रोड, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों की सड़कों और सीवरेज निज़ाम को बहाल किया जाएगा। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि रवां साल तरक्याती मंसूबों पर 50 अरब से ज़ायद की रकम खर्च करेंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में म्यूनिसिपल कमिश्नर की अहम पोस्ट पर नई तैनाती कर दी गई। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 19 के अफसर इब्रार अहमद जाफिर को म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पास के ग्रेड 19 के अफसर इब्रार अहमद जाफिर को फौरी तौर पर म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची तैनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इब्रार अहमद जाफिर इससे कबल एडिशनल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे थे। उन्हें मौजूदा खाली आसामी के खिलाफ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में तैनात किया गया है और वो ताहुक्म सानी इस ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। इससे कबल म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर अफजल जैदी तैनात थे, जिन्हें रवां साल जनवरी में ओहदे से हटा दिया गया था।
मेन कोरंगी रोड से मुंसलिक काला पुल का रेलवे पार्क एक बार फिर खंडर का मंजर पेश करने लगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आज खुद नोटिस लेते हुए पार्क की तामीर का हुक्म दिया था, जिसके बाद रेलवे हुकाम ने बाउंड्री वॉल, ग्रिल और लोहे के गेट भी नस्ब किए। देखिए रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट। कराची में पार्कों की हालत जार बदली ना जा सकी। मेन कोरंगी रोड से मुंसलिक काला पुल का ये रेलवे पार्क कभी अहले इलाका के लिए तफरी का वाहिद जरिया था, मगर आज यहाँ टूटी हुई दीवारें, खाली फ्रेम और वीरानी दिखाई देती है। शहरी कहते हैं अदालती हुक्म के बाद रेलवे हुकाम ने बाउंड्री वॉल और लोहे के गेट नस्ब किए थे, मगर मुबैना तौर पर नशा आवर अफराद आहनी दरवाजे और ग्रिल तक उतार कर ले गए। पार्क या क्रिकेट अकेडमी बना दी जाए, नौजवानों ने मुतालबा कर दिया। जहाँ कोई अकेडमी बनी होनी चाहिए, जहाँ पार्क बनाना चाहिए, क्योंकि पार्क हो तो अच्छा है, जहाँ अकेडमी बने तो बच्चे खेलेंगे। तो ये तो उजरा पड़ा है बचपन से, अभी बंदा क्यों खेले यहाँ आगे। इलाका मकीन कहते हैं कि हमने बड़ी खुशी से देखा था कि पार्क बन रहा है, बच्चों के खेलने की जगह बनेगी, लेकिन चंद ही माह बाद सब कुछ गायब हो गया। अब यहाँ शाम के वक्त आना भी मुश्किल है। फौरी पार्क बहाल करके सब्जा उगाया जाए। बहुत फायदा होगा, गर्मी है, धूप है, रास्ते वाले आते जाते कुछ बैठेंगे, रोड के ऊपर ये गर्मी आ रही है, ऊपर से ऐसे ही पड़ा हुआ है कचरा बजरा, साफ, अंदर सफाई नहीं है। अच्छा हो जाएगा, हो जाए पार्क तो लोगों के लिए अच्छा हो। मकामी शहरियों का कहना है कि अगर फौरी इकदामात ना किए जाएं तो पार्क मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया और नशा आवर अफराद की अमाजगा बन सकता है। अहले इलाका ने रेलवे हुक्काम, जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पार्क की बहाली के साथ साथ सिक्योरिटी के मुस्तकिल इंतजामात भी यकीनी बनाए जाएं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी।